Main camera. रुक जाओ, वॉइस रिकॉर्डर दे दे मेरे को. ऑडियो रोलिंग. Rolling. ठीक है, कैमरा भी रोलिंग. Who are you? I am Ananya Dhankar. I am a final year student and I am also the vice president of Effulgence Films. I'm Khushi and I'm studying English literature. Very interesting. My name is Laksh Neharia and I'm studying physics and I'm a member of Effulgence Films. My name is Rahul Gupta and I am doing BCom program in Sri Venkateshwar College. Movies क्यों पसंद है? Why do you like movies? I like movies because particularly me being in a very science focused stream, I think watching movies and then also getting a chance to create something through at a college level being in Effulgence, it gives me sort of a chance to play into that escapism that I need in my life. They've always been a really big part of my life. I can't even remember a time when I wasn't watching movies. So yeah. मूवीज़ पसंद इसलिए है कि अगर कुछ रिलेट कर पाऊँ उनसे तो उस मूवी को देखने में कितना मज़ा आता है वो आपको ही पता होगा. एंड अगर उनसे रिलेट हो जाए तो मतलब हम ना अपने आप को उसमें छान सकते हैं, लाइक उसमें पहचान सकते हैं. कोई मूवी जैसे आपने देखी हो, कोई हैप्पी मूवी है, कोई कॉमेडी मूवी है, अगर उसमें पहचान पाए अपने आप को तो बहुत अच्छा लगता है. कोई ऐसी मूवी जिसने तुम्हारे और फिजिक्स के बीच में गैप ब्रिज किया हो कि अरे भाई क्या हुआ, क्या चीज़ है मूवी? इंटरस्टेलर मोस्ट प्रोबेबली. क्या क्या था ऐसा इंटरेस्ट? ऑब्वियसली वो डायमेंशंस को डिफाइन करना और इमेजिन करना आगे के डायमेंशंस को. सो और क्या अच्छा लगा इंटरस्टेलर का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे उसका साउंड ट्रैक लगता है, हांस जिमर का, एंड इट्स माय फेवरेट साउंड ट्रैक ऑफ ऑल टाइम. Tell us something about your favorite movies, your top picks. Ooh, that's too much pressure. But there's this movie called Amadeus, directed by Milos Forman. It's incredible, and it's a shame how nobody knows about it, but it's phenomenal. The performances are great. The costumes, the production design, the soundtrack, everything's just perfect. So, what do you like about this movie the most? If you have to pick one thing, is it the story? Is it the actors? Is it the setting? What do you feel? I think the theme of the movie about envy and revenge and doing your best and still living in somebody else's shadow. Do you relate to any aspect of the movie? I hope not. But I hope not. Okay, that's cool. कोई मूवी बताओ जिसमें आपको लगा हो कि अरे ये तो मैं ही हूँ. बहुत सारी मूवीज़ है बट जैसे मैं ऐसे आपको फनी लगेगा बट फिर हेरा फेरी है ना, तो जैसे उसमें आप कितने सारे फनी कैरेक्टर्स हैं तो मुझे भी लगता है यार ऐसे जोक तो मैं भी मार देता हूँ कई बार. तो लगता है कि यार ये जो अक्षय कुमार जोक्स मार रहा है ये जोक तो मैं भी मारता हूँ, कहीं मैं यही तो नहीं. तो वो उस फिल्म को देखने में कितना मज़ा आता है. उस फिल्म को मैं चाहे 5 बार देख लूँ चाहे 6 बार देख लूँ, मैं उसको देख कर कभी बोर नहीं होता. तो इसलिए मुझे तो लगता है कि फिर हेरा फेरी इज़ द फिल्म जिसमें मैं अपने आप को ढूंढ सका. क्या अच्छा लगता है उस मूवी में? उनके जो पंच लाइन्स, जो कि कितने साल पहले की मूवी है वो, बट आज भी कितने रियलिस्टिक लगते हैं. जितने भी उनके पंच लाइन्स है हर जगह व्हाट्सएप इंस्टा हर जगह भरा पड़ा है. कुछ दो एग्जांपल दो कुछ. ए राजू, हाँ. तब वो क्या है उसका, जैसे एक दूसरे वाला है 40 लाख, हाँ. वो वाला. एंड एक तो और तोतला होता है जो तोतले वाला, ठीक है. एंड उसके बाद की जो उसमें वो कहते हैं 150 रुपया देगा. कितने सारे लाइक आज भी चलते हैं. वो कितनी पुरानी फिल्म है बट आज भी चलती है. तो वो सारे डायलॉग्स हैं उसके, आज भी मज़ा आता है उनको सुनने में. I think as a kid I started getting into movies when I was watching Avengers and Marvel movies with my older brothers. recommend 3 good Avengers or Marvel movies. 3 good Marvel movies. Captain America, The Winter Soldier. And tell me why.
Captain America: The Winter Soldier, because I think it's so different from like the usual Marvel movie, right? It gives the spy thriller vibe while also maintaining like the very Captain America Marvel superhero vibe, and the action sequences in that movie are just so well done. अगर किसी ने like everyone should watch that Bucky versus Steve Rogers fight on that highway. Who were you rooting for? Bucky, sorry, I like anti-heroes. एनी साई-फाई फिल्म, इंसेप्शन हो सकता है, मे बी द थिंग हो सकता है. द थिंग में बायोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता है थोड़ा बहुत. सो बताओ द थिंग क्या है. द थिंग एक हॉरर साई-फाई फिल्म है एंड वो भी मुझे बहुत पसंद है. पीटर जैक्सन ने बनाई है वो, एंड उसमें एलियन आता है बाहर से, उसको थिंग बोलते हैं, एंड वो एक तरीके से पैरासाइट टाइप है. पैरासाइट मतलब एक तरीके से सब कंट्रोल कर रहा है वो, एक तरीके से सब पे धीरे धीरे जा जाके कंट्रोल पाना चाह रहा है. सो और कोई मूवी जो तुम्हें लगता है भाई फिजिक्स का इम्पोर्टेंस दर्शाती है? एक फिल्म मैंने देखी थी बहुत पहले, प्राइमर नाम था उसका, एंड पता नहीं वो बहुत अंडररेटेड फिल्म है और शैन कुरैत ने बनाई थी. और टाइम ट्रैवल, सिंपल टाइम ट्रैवल, एंड मेरे को अभी भी वो मूवी समझ नहीं आती है, बट अच्छी लगती है. बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी. चलो मान लो कि आप घर बैठे हो, Yeah. एक फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे की रात है, बारिश हो रही है, 2 दिन तक कुछ कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, ठीक है. क्या करोगे? कौन सी मूवी देखोगे इन 2 दिनों? मैं दृश्यम लगाऊंगा यार. क्यों? दृश्यम दोनों में कितना थ्रिल है, सस्पेंस कितना ज़्यादा है. मैं दृश्यम ऐसी मूवी है जो मुझे 2 बार देखने के बाद समझ आई. अच्छा. मुझे पहली बार में वो समझ ही नहीं कि वो 2 अक्टूबर को कितनी बार गया, कहाँ गया, यही सब 2 अक्टूबर को गया, 3 अक्टूबर को गया कहाँ. फिर मुझे 2 बार देखने के बाद समझ आया कि हाँ ऐसा हुआ है. एंड उसके बाद दृश्यम 2 देखोगे अगर आप, तो उसमें भी क्या अच्छा बनाया रखा उन्होंने. लास्ट का क्या सीन है उसमें, जो उसकी वो बुक लिखता है, उसने कैसे लिख दी एंड ऐसे सब कुछ हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, एंड मैं तो उसी को देखूँ. What films will I watch? A movie that I watched recently on a Friday night is The Wedding Guest. It has Radhika Apte and Dev Patel in it, and I think I love watching movies that are, you know, very calm, very serene. They are not very plot driven, rather they focus on how characters naturally progress, right? Especially if I'm trying to just unwind, right? What I loved about The Wedding Guest was I expected that movie to be, you know, the basic trope of a helpless Indian girl. She gets kidnapped and, you know, then I thought it was a Stockholm Syndrome movie. But it was genuinely not that. For the audience that doesn't know what exactly is Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome is, I think it's in popular media where someone falls in love with their own kidnapper. So spoilers are that in that movie Dev Patel kidnaps Radhika Apte, but it's revealed that Radhika Apte wanted to be kidnapped because she did not want to get married. एक मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट फिल्म है द एग्जॉर्सिस्ट, वो तो मैं डेफिनेटली देखूँगा. और मे बी हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ एज़्काबान. क्या है ऐसा हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, क्यों देखें? वही एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसमें भी बारिश होती है शुरू में, एंड वो एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा बनता है, यू नो, ठंड सी लग रही है, कोजीनेस है, तो वाली चीज़. और क्या मूवी देखो? और एग्जॉर्सिस्ट में ऐसा क्या है? एग्जॉर्सिस्ट तो नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए. मैंने 4-5 बार फिल्म देखी है वो, एंड हर बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है. फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब मैंने रिवॉच करी थी, तो मुझे वो मैंने नोवेल रीड करने के बाद फिर से रिवॉच करी थी, तो फिर मुझे पता चला कि वो जो साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है वो लोग इग्नोर कर देते हैं उस फिल्म को लेकर, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. क्या है ऐसा? एक लड़की है जिसको पजेस किया है सर, मतलब अपेरेंटली, बट वही फिल्म है उसके अबाउट ही है कि वो वाकई में दिमागी बीमारी है या फिर लिटरली कोई डेविल डीमन है उस फिल्म में. So, do you think watching movies can be classified as a hobby in itself? Definitely. Do you have any message for our viewers? A message for any viewers would be ki, you know, I think just explore. If you don't even wanna learn about filmmaking in a very technical aspect, if you just wanna enjoy, explore. I think throughout my life,
like starting from the point I got into movies, I would just randomly search up movies and watch them, then watch YouTube recommendations about them. The more you explore, the more you will get to know what you like and you don't like. And I think movies are a very great outlet to learn about the rest of the world as well. I think we live in such bubbles that sometimes throughout our day-to-day 9 to 5 classes घर classes वाला life में, you don't get to think a lot about the outside world, right? Think a lot about things other than yourself, or even about fictional worlds. I think movies just give you an outlet to think, to imagine, to be creative. So I think everyone should watch movies and should watch any movies जो तुम्हें पसंद आ रहा है देखो. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. मुझे तो मज़ा आया. मैंने कैसा बोला? अच्छा बोला.